Hello students, today we are going to discuss one more practical question from inventory valuation, and in inventory valuation today we will discuss FIFO method. FIFO means first in first out, means whenever you have to issue the goods, very first you will use first purchase, you have to issue the goods from the very first purchase, then second and then third, as we have already discussed all the concept in our live classes. Clear? Now see the question. Prepare store's ledger account as per FIFO method from the following data. Receipt of materials are given here and material issued are given here. Dates are given April 1, 2010, opening balance 1000. Since in this question opening balance is given, so what we have to do, we will put this opening balance in receipt column. After that, April 3 and after 12 you are purchasing the goods and rates are also given. Then in material issued column, dates are given April 4, April 6 and April 15, and these are issued quantities. Clear students? As I already told you कि हमें जो भी स्टोर लेजर बनाएंगे उसमें डेट वाइज मूव करना है. मीन्स April 1 की ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होगी, देन April 2, देन April 3. ऐसा नहीं करेंगे कि पहले रिसीट्स को फीड कर ले या फिर इशू को फीड कर ले. यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू डेट वाइज. Now see the solution. At the top here we will write stores ledger account and inside the bracket we will write FIFO method, क्योंकि ये FIFO method के अकॉर्डिंग बनाना है. मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. You are know very well format of store ledger account. We are having 4 columns, you can say date, then receipts, then issues and then balance. Closing balance कैसे मिलेगा? If we subtract issues from receipts, we will get closing balances. And dates is a first column. Further we can break our receipt and issue and balance column in 3 major parts. Very first part is units, then rates and then amount. Similarly in case of issues, units, rates and amount, and in closing balance, units, rate and amount. When we will multiply units with rate, we will get the amount. Is that clear? Now start the solution. As on April 1, 2010, we are having opening balance 1000. Clear? तो receipt में record नहीं कर रहे because it is our opening balance, no issue. In balance we are directly record 1000 units at the rate ₹5. Amount is 5000. यानी कि April 1 को हमारे पास स्टोर में 1000 यूनिट्स थी. किस रेट पे? ₹5 पर यूनिट, और उनका टोटल वैल्यू कितना था? 5000. Clear? After that, next date is, you can see in receipt and material issued column, next date is April 3. In April 3, what we are doing, we are purchasing units. How many? 5000 units. At which rate? 6. तो ये हम receipt column में record करेंगे. See here, April 3, 5000 units, ₹6 and total value is 30,000. Clear? और April 3 को हम कोई भी issue नहीं कर रहे, यानी हमारा stock कम नहीं होगा. Previously we are having 1000 units. And now we are purchasing more 5000 units. So now as on April 3 we are having 2 bags of stock. Very first bag consisting 1000 unit and second bag consisting 5000 units. 1000 का रेट आपके पास क्वेश्चन में क्या था? 5 ओपनिंग स्टॉक, एंड सेकेंड या वेरी फर्स्ट परचेज 5000 यूनिट्स एट द रेट ₹6, इट इज़ 30,000. तो 30,000 प्लस 5000, तो योर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, विल बी 35,000. तो अब हमारे पास April 3 में वी आर हैविंग 2 bags, 1 bag containing 1000 unit and second bag containing 5000 units. Is it clear to all of you? Now, after April 3, next transaction is held as on April 4. April 4, what we are doing, we are issuing 3000 units. Now be careful, we are having 2 bags, 1000 and 5000. अब हमें 3000 यूनिट्स इशू करने हैं. हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? FIFO. तो यानी जो फर्स्ट बैग है पहले हम उसमें से गुड्स को इशू करेंगे, स्टॉक को इशू करेंगे, और जब वो कंज्यूम हो जाएगा फिर हम सेकेंड बैग पे मूव करेंगे. तो सी, वी आर इशूइंग 3000. तो वेरी फर्स्ट वी आर इशूइंग 5000 फ्रॉम फर्स्ट बैग. व्हाट वाज द रेट ऑफ फर्स्ट बैग? ₹5. एंड देन बैलेंस क्वांटिटी 2000 वी आर इशूइंग फ्रॉम सेकेंड बैग विच इज़ कंटेनिंग 5000 यूनिट्स एट द रेट ₹6. तो टोटल इशूड वैल्यू 17,000. 1000 इंटू 5, 5000, 2000 into 6, 12,000. तो 12,000 plus 5,000 you will get 17,000.
अब हमारे पास क्या स्टॉक बचेगा, 1000 का पूरा बैग हमने इशू कर दिया, 5000 में से भी हमने कितने इशू करे, 2000. नाउ रिमेनिंग बैलेंस लेफ्ट इन सेकेंड बैग इज ओनली 3 एट विच रेट ₹6. द टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 18,000. दैट मीन्स एज ऑन April 4 वी आर हैविंग ओनली 3000 यूनिट्स लेफ्ट एट ₹6 and total value of the stock is 18,000. Clear? After that April 6 again we are issuing 2000 units. तो हम ये 2000 यूनिट्स कहाँ से इशू कर सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस डे में 3000 की यूनिट्स थी, हम इस 3000 में से 2000 यूनिट्स इशू करेंगे एट ₹6, फिगर विल कम 12,000. तो 3000 में से आपने 2000 इशू कर दिया, तो नाउ बैलेंस लेफ्ट ओनली 1000. 1000 किस रेट का, ₹6 एंड वैल्यू विल कम 6000. तो एज ऑन April 6 व्हाट इज़ द क्लोजिंग स्टॉक, 3000 में से 2000 गुड्स आपने लेबर को या वर्कर को इशू कर दिए, तो अब आपके पास सिर्फ 1000 यूनिट्स स्टॉक में या स्टोर्स में रखी हुई हैं. किस रेट पे, 6, और उसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है, 6000. आफ्टर April 6 नेक्स्ट डेट इज April 12. अगेन वी आर परचेजिंग गुड्स, हाउ मैनी, 3000 एट विच रेट 5. तो सिंस वी आर परचेजिंग, तो April 12 की फिगर को हम लोग रिसीट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 3000 ₹5 के रेट से एंड वैल्यू इज़ 15,000. क्लियर? और इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन April 7, 2010 शोड एंड शॉर्टेज ऑफ 150 यूनिट्स. तो April 12 पे मूव करने से पहले हमें ये एंट्री भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. हो क्या रहा है, April 7 को देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ 150 यूनिट्स. क्लियर? लॉस हो गया, आपका स्टॉक कम हो गया. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि व्हेन एवर योर स्टॉक इज रिड्यूसिंग यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इशू कॉलम. तो 150 जो हमारा लॉस होगा वो किस में से हो जाएगा, जो 1000 यूनिट स्टॉक में बच रही थी इसी में से 150 हमने और माइनस कर दी, और ये 1000 किस रेट पे थी, 6 पे, तो ये 150 लॉस भी हमने 6 के रेट से वैल्यू किया एंड वैल्यू इज कमिंग 900. तो अब रिमेनिंग स्टॉक लेफ्ट ओनली 850 एट विच रेट ₹6 एंड वैल्यू इज कमिंग हाउ मच, 5100. क्लियर? ये हमने इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट किया है और इस लॉस यूनिट्स को हमने इशू में शो करा है, और इसके लिए रेट कौन सा पिक किया है, जस्ट प्रीवियस डे रेट, जो भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था उसी स्टॉक का रेट हमने यहाँ पर पिक किया है. नाउ April 12 वी आर अगेन परचेजिंग 3000 यूनिट्स 15,000. तो अब हमारे पास ऑलरेडी कितना स्टॉक बच रहा था, 850, और 3000 हमने और परचेज कर लिया. क्लियर? 850 आपका ₹6 के रेट का था और 3000 आपने ₹5 के रेट से परचेज किया. तो नाउ योर टोटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कम्स 20,100. 1000 में से 150 का नॉर्मल स्टॉक आपने नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था, तो 1000 में से अब 850 गुड्स वहाँ पर रह गए थे, और वो किस रेट के थे, 6. एंड वंस अगेन एज ऑन April 12 यू आर परचेजिंग न्यू गुड्स 3000 क्वांटिटी एट ₹5. तो अब हमारे पास कह सकते हैं कि दो बैग्स हैं, फर्स्ट बैग 850 यूनिट्स कंटेन कर रहा है और सेकंड बैग 3000 यूनिट्स कंटेन कर रहा है. क्लियर? एंड एज ऑन April 15 अगेन वी आर इशूइंग 1500. सिंस वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड, तो पहले हम 850 वाले बैग में से यूनिट्स इशू करेंगे एंड बैलेंस 650 यूनिट्स वी विल इशू फ्रॉम सेकंड बैग विच कंटेन्स 3000 यूनिट्स. 850 का रेट क्या पिक करेंगे, ₹6, और जो 3000 वाला यूनिट का रेट था वो क्या था, 5. तो अब आपके पास इशूड वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8350. एंड बैलेंस लेफ्ट 3000 में से आपने 650 माइनस कर दिया, तो अब आपके पास बैलेंस कितना बच रहा है, 2350, एंड रेट इज़ ₹5 एंड टोटल वैल्यू इज कमिंग 11,750. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका FIFO मेथड. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.